Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today we are going to do the remaining part of exercise from unit number 1, the last sermon of the Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We will continue from exercise D, and here we are given read each set of sentences and circle the pronoun in the second sentence. Underline the noun or nouns in the first sentence that the pronoun replaces. As we have read the definition of pronoun, that pronoun is a word that replaces a noun. So here we are given two sentences. In one sentence they are using a noun or nouns, and in the second sentence they are using a pronoun for it, and they have asked us to underline the noun for which in the second sentence they have used a pronoun. So we will do this exercise as the first one has been done for us. First example is the hearing aid is used for hearing, यानी कि सुनने का जो आला है वो सुनने के लिए बनाया जाता है. और सेकंड सेंटेंस हमें दिया गया है इट इज़ यूज्ड फॉर हेयरिंग. तो यहाँ पे ये वर्ड यानी कि इट जो है जो कि हेयरिंग एड को रिप्लेस कर रहा है, ये हमारा pronoun है because it is replacing this noun, and we know that a word which replaces a noun is called a pronoun. So in the second sentence we will look for the noun and pronoun by ourselves. Bees collect pollen. So here what is the noun? Bees collect pollen. And in the second sentence we are given they collect pollen. So they is a pronoun to bees. In the next sentence, mother and father went to the market. And the second sentence of the second part of the sentence is they went to the market. So because here we have two nouns, common nouns हैं, mother and father. So to replace these two common nouns, the author has used they. So it will replace mother and father. So this is a pronoun. Sabiha went home. She went home. She is a pronoun for Sabiha. Books and magazines were piled on the table. Now there are two nouns again, books and magazines. They were piled on the table. They is used for books and magazines. We will circle they and underline books and magazines. Sixth sentence is Adnan ran in the race. He ran in the race. To replace the word Adnan, the author has used he. So it is a pronoun and we will underline this noun. The next topic is regular verbs and irregular verbs. So here we will see what are the regular verbs and what are irregular verbs. A regular verb is the one that follows the pattern of taking ed for the simple past and past participle forms. For example, and ended. So here by this definition we came to know that regular verbs are those verbs that will follow the pattern of ed in past and past participle forms. It means that in second and third form the verbs which take ed to make the second and third form they are regular verbs. जैसे कि एंड है तो एंडेड ईडी लगाया तो हमारी सेकंड फॉर्म भी बन गई और यही हमारी थर्ड फॉर्म है. जैसे टॉक बोला बोलना, टॉक्ड टॉक्ड, ईडी हमने लगाया तो हमारी सेकंड फॉर्म भी बन गई, थर्ड फॉर्म भी बन गई. सच वर्ब्स आर कॉल्ड regular verbs, and here there are given irregular verbs, and now we will read what are irregular verbs. An irregular verb is one that does not take ed ending for the simple past and past participle forms. For example, catch, caught. अब यहाँ पे देखें ये ऐसे verbs होते हैं जो कि ed के पैटर्न को फॉलो नहीं करते पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के लिए. पास्ट आपको पता है सिंपल पास्ट हमारी सेकेंड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल हमारी थर्ड फॉर्म है. तो कैच से कॉट और कॉट. और इसी तरह अगर आप देखें फ्लाई उड़ना, फ्ल्यू फ्लाउन. अब इसमें भी देखें फ्ल्यू और फ्लाउन में भी ईडी पैटर्न फॉलो नहीं किया गया सिंपल पास्ट के लिए भी और पास्ट पार्टिसिपल के लिए भी, दोनों इसकी फॉर्म्स डिफरेंट हैं. सो दे विल बी इरेगुलर वर्ब्स. नीचे हमें कुछ जो है वो वर्ड्स दिए गए हैं. आइडेंटिफाई रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स फ्रॉम दी फॉलोइंग.
run, add, go, pray, light, delay, tie, fly, mend, laugh, and come. So after these definitions, I guess you can very easily find out which are regular and which are irregular. I will do just two for you, and then you will make a homework of it. रन, रैन, रन, यानी कि पहली फॉर्म रन है, सेकंड रैन है, थर्ड फिर से रन है। तो ये भी ईडी के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? इरेगुलर की कैटेगरी में। नेक्स्ट है ऐड। ऐड देखें, ऐड को एडिड और एडिट करते हैं हम, यानी कि ईडी पैटर्न को फॉलो करता है, तो इट विल फॉल टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रेगुलर वर्ब्स, and the rest of all these will do you by yourself. We will move towards our next topic, and this is simple present tense. The simple present tense is used to express a habitual action. Simple present tense जो है वो एक आदत को शो करने के लिए, एक ऐसे काम को बताने के लिए जो कि हैबिचुअल हो, हैबिचुअल एक्शन हो, उसको हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल, वी टेक रिफ्यूज विद अल्लाह अलमाइटी, हम अल्लाह की पनाह में आते हैं। माई क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम, मेरी घड़ी सही वक्त जो है वो बताती है। तो ये हैबिचुअल एक्शंस जो हैं ये हमारे सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। सो वी आर आस्क्ड एट पॉइंट एफ, fill in the blanks using the simple present tense of the verbs given in brackets. इन brackets में दिए गए verbs को यूज़ करके हमने blanks fill करनी है present simple present tense के अकॉर्डिंग। और simple present में हम ये करते हैं, when we have a singular subject we add s or es with our verb. So every man dash what to do, because every man, when we use every man, it means that we are using it individually and we will consider that our subject is singular. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है, अपना वर्ब यूज़ करना होता है, यानी कि एस और एस का इजाफा करना है। तो एवरी मैन जो है वो सिंगुलर के तौर पे लेंगे और एस का इजाफा करेंगे, एवरी मैन नोज़ व्हाट टू डू। सेकेंड इज ईच चाइल्ड डैश अ प्रेजेंट। ईच चाइल्ड अगेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो हर बच्चे ने तोहफ़ा वसूल किया, तो ईच चाइल्ड रिसीव्स, यहाँ पे भी हमें एस का इजाफा करेंगे, रिसीव्स। दैन नेक्स्ट इज़ थर्ड पे आएंगे, माई फादर डेली डैश मी एंड माई सिस्टर टू स्कूल। यहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। जी, माई फादर डेली डैश मी एंड माई सिस्टर टू स्कूल। अब यहाँ पे मी एंड माई सिस्टर ये तो दो लोग हैं, लेकिन ड्राइव करने वाले अभी भी एक ही हैं, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन जो हैं, जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने ड्राइव करना है, वो एक हैं, सिंगुलर हैं। तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे ड्राइव के साथ, एस ड्राइव। नंबर 4, द सन सिंगुलर, राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट है नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अ टिकट। नन ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि अगेन हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स में से किसी एक के पास भी टिकट ना था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें हैव का गिवन है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट इनके सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ टिकट। सो नाउ आई आस्क यू टू राइट these verbs correctly with lead pencil here in blanks, and we will move towards our next point. Here is asked at point G, pick out few simple present tense sentences from the lesson. लेसन के अंदर से आप जो है वो कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस फाइंड आउट करें जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई होगी, और जिसमें या तो एस और ई एस के इजाफे के साथ या विदाउट एस और ई एस के इजाफे के साथ, तो वो आपने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट एज पे कहा जा रहा है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंचुएट करने का कहा गया। पंचुएशन के रूल जो हैं वो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। पंचुएशन क्या है? पंचुएशन जो है वो किसी भी लैंग्वेज के मीनिंग को अच्छे से कन्वे करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं, पंचुएशन मीन्स द राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। जैसे डिफरेंट स्टॉप्स और पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, इनको सही जगह पर पुट करना जो है वो पंचुएशन कहलाता है। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल स्टॉप्स, ये जो हैं अहम स्टॉप्स जो हैं वो ये हैं।
जैसे फुल स्टॉप और पीरियड, इसे क्या कहते हैं, फुल स्टॉप और पीरियड। ये जो एक डॉट हम जुमले के एंड पे लगाते हैं इसे हम फुल स्टॉप और पीरियड कहते हैं। सेकेंड इज़ कॉमा, हम लोग यहाँ पे कॉमा यूज़ करते हैं। सेमी कॉलन, जब नीचे कॉमा और ऊपर साथ में एक डॉट आ जाए तो उसे हम सेमी कॉलन कहते हैं। जब दो डॉट्स ऊपर नीचे आएंगे तो वो कॉलन होगा। अगर क्वेश्चन मार्क हम लोग सवाल कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं एंड अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। ये कॉमा ही की तरह होता है लेकिन ये लाइन के बीच में यानी कि लाइन पर नहीं बल्कि किसी लेटर के ऊपर आता है। और देन कोटेशन मार्क्स, हम लोग कोटेशन मार्क्स यानी कि इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं कोटेशंस का बताने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वेयर आर यू गोइंग। अब देखिए वेयर जो है, वी नो दैट वेयर इज़ अ क्वेश्चन वर्ड एंड व्हेन वी आर आस्किंग सम क्वेश्चंस व्हाट वी हैव टू डू, we have to put a question mark at the end, but first of all we will do the W to make it capital। W को हम लोग कैपिटल करेंगे सबसे पहले, so we will capitalize W because we know the every sentence has a capital letter at the beginning। तो सबसे पहला जो है वो लेटर हम कैपिटल करेंगे, W को कैपिटल करेंगे यहाँ पे, वेयर आर यू गोइंग, और यहाँ पे एंड पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकेंड इज हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो हुर्रा का भी एच हम कैपिटल करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, वी हैव वॉन द मैच फुल स्टॉप लगाएंगे। इट्स अ ग्रेट ट्रेजरी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं, आई को कैपिटल करेंगे बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस एंड एट द एंड वी विल यूज एन एक्सक्लेमेशन। Lahore is the capital of Punjab. So here we are given some proper nouns and we know proper nouns are always taking a capital letter. Doesn't matter wherever they are in the sentence. They are either they are at the beginning of the sentence, either they are in the end of the sentence. They will always take a capital letter. So we will capitalize L and we will capitalize P because Punjab is a proper noun, and we will put a full stop at the end of the sentence. What a beautiful scene. Again we will capitalize W and put an exclamation at the end of the sentence. So this will you will do, and this you will practice and learn from this lesson and this exercise. For this lesson it is over now. Thank you so much. Allah Hafiz.